Dear friends, in this video we shall discuss about the silent letters. Normally we think doesn't matter if any letter lacks its sound. But this is big, right? Very common word. If we had not listened it till now, very possible we will pronounce it bright, not right. Firstly, we discuss the combination of PS. It is the toughest section of silent letters in English language because in this section we find such words those are rarely used, but fortunately in this section there are only 5 base words which are found in English language. The first letter of this section, first word of this section in the dictionary, we find that is psalm, P-S-A-L-M. But it is very interesting when a poem was discussed in high school textbook first time. The name was Psalm of Life. But in those days, a number of teachers, I don't want to say, or it is not my intention that I am saying they are very poor in English. Really, they were very intelligent. They were big persons in English field of my city. But they heard this word, they saw this word PSALM first time, so very long time to the people to whom I knew that time, they say to the name of the poem, Psalm of Life. The reason is they don't know the technicalities of English language and they never read about it when a letter is lapsed its sound. Basically, it is the technicalities of the language, the silent letters. When a letter is silent in a word, it is very important to know, otherwise we will make the wrong pronunciation. And traditionally, this section is not discussed in our textbooks, in our grammar books, and also a number of grammar books, those don't discuss about it. So here we will discuss in this section, firstly, when we see the word, those have PS, then P is silent. The next word in this section is pseudo. The meaning of pseudo is the person who is so-called intelligent, so-called expert of the field, he is pseudo. The meaning of psalm, which was discussed firstly, is bhajan. In the same way, pseudo means tatha kathit buddhijeevi. In the section, we will discuss thirdly, the word is pseudonym, that is made by the pseudo base word, and it is followed by the suffix that is called nym, nim suffix. Then the word becomes pseudonym. Pseudonym means the chhadm naam, means my name is Yogen Sharma, but the persons who are close to me say to me Guddu. So the Guddu name is pseudonym, means Yogen Sharma urf Guddu. Fourthly, we discuss the next word, psoriasis. Psoriasis is a kind of disease, एक रोग का नाम है. And fifthly, we discuss about the word PSHAW, shaw. The pronunciation of this term will be shaw. Shaw is the exclamation of disgust.
means when we disgustedly say something, we in a word we exclaim, that is shock. In Hindi, it is said chi. And lastly, the word is psych. It means in Hindi we will say the meaning of this word antarman, avchetan. The term psychology is also made of this. So here, if we discuss the psych word, it is the last word, and in the dictionary base, the words which are made with the psych are a number of words. Those are found in English dictionary. The last word based on psych term will be psychotherapy. In the next section, we will discuss the terms on the copy so you can understand other combinations very clearly. Here, the purpose of the video never to show the very beautifully. The purpose of the video is to attain the knowledge and the technical things. Those are used very commonly in English, but we don't know. So go further, we will take up. इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने पी और एस के साथ में पी के साइलेंट होने के बारे में डिस्कशन किया था, और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि 5 वर्ड्स हैं जो कि बेस वर्ड हैं, जिनसे बहुत सारे और वर्ड्स बनते हैं, और लास्ट में आपको डिक्शनरी में वर्ड मिलता है, वो होता है साइकोथेरेपी। इसके बाद में हम आपके सामने अगला एस्पेक्ट रखने जा रहे हैं, जिसमें हम उस वर्ड की बात कर रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम ए के साथ में एक कॉम्बिनेशन देखते हैं एल, और इसके बाद में कुछ और दूसरे लेटर्स लगते हैं जैसे कि के। तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो आपके वर्ड में एल साइलेंट हो जाता है, जैसे कि टी ए एल के। हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं टॉक। बहुत कॉमन वर्ड है, आप सब जानते हैं इसका मीनिंग। टॉक मीन्स बात करना। इसी तरह से ए एल के साथ में अगर एम लगा होता है तो भी आपका एल साइलेंट हो जाता है, जैसे कि पाम, पी ए एल एम। पाम मीन्स भी आप सब लोग जानते हैं। पाम मीन्स होता है हथेली। हथेली की शक्ल के ही पत्तों वाला एक पेड़ होता है जिसको हम पाम ट्री बोलते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और कॉमन है, जिसमें हम के साथ में जब एन को लगा हुआ देखते हैं तो रिमेंबर कीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा कि के और एन अगर एक साथ होंगे तो यहाँ पर के जो है वो साइलेंट हो जाएगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो के प्लस एन में के अपनी साउंड नहीं देगा। इसी तरह से ऊपर के स्ट्रक्चर में जैसे कि एल अपनी साउंड नहीं दे रहा था, वैसे ही के अपनी साउंड नहीं देगा। जैसे कि हमने वर्ड पढ़ा है के एन आई एफ ई, नाइफ। नाइफ में के साइलेंट हो जाता है। नाइफ का भी मीनिंग आप सब लोग जानते हैं, नाइफ मीन्स चाकू। इसी तरह से बहुत ही नॉर्मल और वेल नोन वर्ड है के एन ओ डब्ल्यू। इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं नो। नो मीन्स होता है जानना। इसी से वर्ड एक और बनता है के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई। नॉलेज का भी मीनिंग आप सबको मालूम है, नॉलेज मीन्स ज्ञान। इसी तरह से इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं के एन आई जी एच टी। नाइट मीन्स होता है शूरवीर, योद्धा। तो इन सारे कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना होगा कि के और एन अगर एक साथ आता है तो के साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा
कि हम लोगों का इस वीडियो का उद्देश्य कोई कॉमर्शियल नहीं है, इसलिए हम इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि वीडियोस बहुत सुंदर बने हुए हों या बहुत अट्रैक्टिव हों। हमारा मेन पर्पस है कि आपको मीनिंग समझ में आए। ऐसे ही एक और वर्ड हम लेते हैं, जैसे कि KNOB, नॉब। नॉब मीन्स जो हमारे तमाम तरह के घर में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि साउंड सिस्टम होते हैं, उनमें एक घुंडी रहती है जिससे हम साउंड को ऑपरेट किया करते हैं, या फैन का रेगुलेटर होता है उसमें एक घुंडी लगी होती है, तो नॉब उन घुंडियों को कहा जाता है। इसी तरह से आपके गैस स्टोव में नॉब्स लगे होते हैं, उनकी स्पेलिंग भी KNOB हुआ करती है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन वर्ड है नकल, KNUCKLE। नकल हमारी, ये जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे जॉइंट होते हैं जिन पर हम पेन रख के शो कर रहे हैं, इन जॉइंट्स को फिंगर्स के हम नकल कहा करते हैं। इसके बाद में हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट साइलेंट लेटर के ऊपर आते हैं, जिससे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर W और R एक साथ आएंगे तो W साइलेंट हो जाएगा, जैसे कि WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना। इसी तरह से WREATH, रेथ। रेथ आपका एक तरह की कंडीशंस रहा करती हैं जिसमें हम तमाम घातक स्थितियों का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से एक वर्ड और होता है WRECK, रैक। रैक किसी चीज़ का नष्ट होना होता है, स्पेशली स्पेसशिप का, एयरशिप का, या फिर एरोप्लेन्स का, या फिर आपके जो वाटर शिप्स होते हैं, पानी के जहाज़ होते हैं, उनके नष्ट होने के लिए रैक टर्म का यूज़ होता है। और इसी तरह से अगर हम वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे, साइलेंट लेटर्स को यूज़ करेंगे, तो फिर हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लैंग्वेज संबंधी प्रोनाउंसिएशन में कोई फॉल्ट नहीं आएगा। और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसके लिए आप एक साइलेंट स्ट्रक्चर को उठाइए, डिक्शनरी को लीजिए और उस क्रम में देखते चले जाइए। सबसे पहले इसके लिए आप PS से ट्राई कीजिएगा, WR साउंड से ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से और बहुत सारी साउंड्स होती हैं, जैसे कि GH में GH अपनी साउंड नॉर्मली डिफ्थोंग साउंड के साथ में ख़त्म कर देता है, जैसे कि LIGHT, लाइट, EIGHT, 8, FIGHT, फाइट। इसी तरह से अगर GH एंड में आता है तो ये फा की साउंड देता है, जैसे कि COUGH, कफ, ROUGH, रफ, TOUGH, टफ। तो ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ से आपको एक आइडिया मिला होगा। थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो निश्चित रूप से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप गार्जियन हैं तो भी आप बहुत अच्छे से बच्चों के लिए समझा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि तमाम बार क्या होता है कि हमारे सामने वर्ड्स आते हैं, तमाम इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लेकिन हमें अगर सही से नहीं मालूम होता है तो हम उनकी स्पेलिंग को सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते। इसके लिए मैं एक बहुत कॉमन वर्ड आपके सामने रखूँगा, जैसे कि आप सबने सुना हुआ है रिंच, लेकिन वास्तव में वो उसका प्रोनाउंसिएशन रिंच नहीं होता है, WRENCH ये वर्ड होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेंच। रेंच मीन्स होता है किसी भी चीज़ को ऐंठना, मड़ोड़ना, और उसी से एक इक्विपमेंट बनता है जिसको हम रिंच बोला करते हैं। वास्तव में वो रेंच है और वो बोल्ट वगैरह को कसने के काम में आता है।
तो आप समझ गए होंगे कि कितना कॉमन वर्ड होने के बावजूद भी अगर कोई नॉर्मली पूछ बैठे कि रेंज की स्पेलिंग क्या होगी, तो आदमी गलती से यही कह बैठेगा RINCH, जबकि WRENCH उसका सही प्रोनाउंसिएशन है रेंच, और WRENCH है उसकी स्पेलिंग। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए लाभ पहुंचा रहे हैं, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका नाम है अनट्रेडिशनल एजुकेशनल सपोर्ट। अनट्रेडिशनल नाम भी इसीलिए दिया गया है कि ये इसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो पारंपरिक तौर पर हमारी एजुकेशन में शामिल नहीं हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस किया करते हैं। चाहें तो आप नए वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन्स को भी आप प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।